I call. Who is this I? I कौन है? David. To the choir master with a stringed instrument, a psalm of David. Answer me when I call, O God of my righteousness. So, रिमूविंग और फोर हेडिंग सब निकाल कर 3 का 8 के बाद इसको कंटिन्यूस पढ़ा तो कैसे होगा, एक बार पढ़ के देखो. Arise, O Lord, save me, O my God, for you strike all my enemies on the cheek. पढ़िए. You break the teeth of the wicked. Salvation belongs to the Lord. Your blessing be on your people. Salvation belongs to the Lord. Your blessing be on your people. Answer me when I call, O God of my righteousness. You have given me relief when I was in distress. So Psalm number 3 and 4 is again connected. Somebody please read which is there in the board. Deepak. Psalm 4 is a significant text within the book of Psalms, offering insight into the spiritual, historical, and literary context of the ancient Israel. The psalm attributed to David is often classified as an individual lament or evening prayer, reflecting the struggles and faith of its author. The study of Psalm 4 provides a window into the religious life of Israel, the theology of Psalter, and the enduring relevance of its message. The assignment explores the background. So in Psalm number 4 also we are going to have a look into the struggles and faith of its author, its psalmist. Who is that psalmist? David. So it is connected with Psalm number 3. And authorship or setting, as we know, it is connected with David's life only. The psalmist is King David, and it is written in inverted comma in your Bible, to the choir master with stringed instrument, a psalm of David. इसको कैसा भजन का गीत गाना है, एक स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट के साथ choir मास्टर को बताया गया है इसको कैसा गाना. choir मास्टर मतलब कौन है? इस पढ़ने वाला लोग या आराधना वर्शिप का लीडर. उसको कैसा इसको गाना करके बोला है, विथ स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट इसको गाना है करके इंस्ट्रक्शन दिया. वो ऊपर हेडिंग का मतलब वो है पढ़ने का समय इसका मास्टर अगुआ लीडिंग करने वाला व्यक्ति या भजन गाने वाला व्यक्ति पढ़ने वाला व्यक्ति क्या करना है. स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या है? स्ट्रिंग गिटार, वीणा भी स्ट्रिंग है ना. Then the context you can see in 2 Samuel chapter 15, 16, 17 and 18. खोल के देखना ये बाइबल में हेडिंग क्या लिखा है. 15, 16, 17, 18. कौन बिट्रे किया? बाइबल खोल के देखा तो समझ आएगा, हम उतना पंडित लोग नहीं है. 2 Samuel chapter 15, 16, 17, 18. अब्शलोम 17 हाथ में आते आते हुशाई, उसके बाद 18 में आते आते अब्शलोम को सादोक ने मार डाला ना. कौन मारा था? हाँ, जोआब. So Psalm chapter 18 ends with David's grief. दाऊद ने उनका बेटा मर गया करके बहुत बहुत दुख होता है, रोता है. So the mention of stringed instrument in the superscription indicates Psalm number 4 was intended for liturgical use. Music played a central role in Israel worship. A psalm like this one were integral to both public and private devotion. So इसका पुराना समय में इजराइल लोग पब्लिक वर्शिप के लिए, प्राइवेट डिवोशन के लिए इस्तेमाल करता था, और ये लोग इसको म्यूजिक स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट के साथ ही गाता था. Maybe some scholar says that it is used for evening prayer, reflecting daily rhythms of worship in ancient Israel. इजराइल लोग इसको शाम का प्रार्थना का समय यूज करता था. So socio-political background.
सोशियो पॉलिटिकल मतलब यह है इस भजन संगीता का राजकीय रूप से इसका बैकग्राउंड क्या है, सामाजिक रूप से इसका बैकग्राउंड क्या है। दाऊद का बेटा मर गया, जोआब ने मार डाला। सोशियो पॉलिटिकल बैकग्राउंड इन ए पॉलिटिकल वे, इन ए सोसाइटिकल वे, दाऊद का एनिमी मर गया, बट वो एनिमी कौन था, खुद का बेटा था। सो फॉर नेशन दिस माइट नॉट गिव एनी बिग ग्रीफ और सैडनेस, देश के लिए बहुत बड़ा निराश की बातें नहीं है क्योंकि एनिमी, बट फॉर डेविड इट इज समथिंग पर्सनल। इन वन साइड ही वाज द एनिमी एंड द अदर साइड ही वाज हिज ओन son, so mixed emotion. So what is the socio-political background of Psalm number 3? For the nation, no more enemy. But personally for David, no more enemy and no more son. खुशी भी है। लिटरेरी स्ट्रक्चर एंड जॉनरे मतलब लिखने का तरीके क्या है, क्लासिफिकेशन। Psalm number 4 is generally classified as individual lament. Again this is individual lament, व्यक्तिगत विलाप है। IL लिख के रखा तो समझ आएगा, individual lament, IL individual lament मतलब it is a good news for the nation but it is a bad news for David individually, personally. He is complaining or he is raising a complaint and a petition for help, and he is expressing his trust, and he is saying there was a vow of praise. मैंने एक निर्णय लिया था, मैंने धन्यवाद करूंगा। और Psalm 4 adheres to the structure through it is more succinct than other psalm laments. ये जो भजन में उनका बहुत गहराई सा एक दुख है, इज वेरी वेरी सैड। वाई? बिकॉज ही डोंट नो हाउ टू रिएक्ट। वाई? एट वन साइड ही लॉस्ट हिज सन, एट वन साइड ही लॉस्ट हिज एनिमी, ही डोंट नो हाउ टू रिएक्ट इन दिस सिचुएशन। हमारा भी ऐसा होगा कभी कभी कुछ समय में, एक तरफ से अच्छा ही है, दूसरी तरफ से मतलब व्हेन हमारा बाप या हमारा दादी वो बुढ़े होकर बेड पे पड़े रहता है, उनका हालत देखकर कभी कभी हम क्या सोचता है, प्रभु इसको बुलाया तो अच्छा था, फिर बुलाया तो रोना भी है। सो मिक्स्ड है ना वो इमोशन। एक तरफ से उनका दुख दर्द देते हुए हम क्या सोचता है, प्रभु इसको बुलाया तो अच्छा था, इतना दर्द के साथ कितना दिन बेड पे पड़े रहेगा, इससे अच्छा है आप। बट जब मर गया हम रोता है, नहीं रोता है, और ताली बजा के खुशी मनाता है, पर मैंने प्रार्थना की उत्तर मिला करके। एक तरफ से अच्छा हुआ, उनका शरीर के दर्द से उनको आजादी मिला, दूसरी तरफ से हमको थोड़ा दुख भी, थोड़ा नहीं दुख तो होता है। सो ऐसा एक इमोशन में है अभी दाऊद, क्योंकि शत्रु इनको गिराने के लिए आ रहा था वो, और शत्रु कौन भी है, जोआब के लिए एनिमी को मार डालने का फीलिंग होगा, दाऊद के लिए बेटा था, इसलिए जोआब को बाद में क्या किया। स्ट्रक्चर, इन्वोकेशन का हिंदी क्या है मुझे पता नहीं। सो इन वर्स 1 ही इज कॉलिंग टू गॉड, recalling for the deliverance, recalling. Why it is recalling? In Psalm number 3 he already called. In Psalm number 3 he already called, that is in verse 7. Psalm number 3 का 7 first calling, arise O Lord, बुलाया। उसके बाद Psalm number 4 verse 1, answer me when I call, है ना, रिकॉलिंग। समझ आया नहीं आया? कॉलिंग एंड रिकॉलिंग। एड्रेस टू ओपोनेंट्स, Psalm number 4 verse 2 और 3, कौन इसका विरोध करने वाला है उसके बारे में बताता है। एंड ही सेज टू देम आई हैव रिलेशनशिप विथ गॉड। देन एक्सोर्टेशन,
He also said to them, to his opponents, मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर दंड देगा, और मन फिराकर रिपेंट होकर वो परमेश्वर पर भरोसा रखना। किससे बोल रहा है? उसका एनिमी से बोल रहा है। उसके समय उन्होंने मर गया। कौन? एक्सप्रेशन ऑफ ट्रस्ट, वर्सेस 6 to 8. So Psalm number 3 and 4 has one more similarity. Both has same verses. 8 है नहीं, इधर नहीं है, बाइबल में है। Psalm number 3 में कितना वचन है? 4 में। Psalm number 3 ends with salvation belongs to the Lord. Psalm number 4 ends with, in peace I will be both lie down and sleep. For you alone, O Lord, make me dwell in. Again it sounds same. दोनों वचन में sounding same है. And here he see, in peace I will both lie down and sleep. So I was thinking, बेटा मर गया करके सुनने के बाद lie down मतलब क्या है? ऐसा लेटना। स्लीप उसके बाद आने वाला काम है। सो उन्होंने क्या प्रार्थना किया? परमेश्वर शांति में मैं दोनों करूंगा। दोनों क्या? लेटूंगा और परमेश्वर आप ही मुझे ऊपर लेना है। उसका बेटा मर गया करके नहीं दुख में है। सो यू अंडरस्टूड द डिविजन। Literary devices. Psalm 4 employs various literary devices including parallelism, metaphor, तुलना करने का बात है, शब्दों को जोड़ने का आइडिया यूज किया है, rhetorical questions, कुछ सवाल भी दिया है शायद। Did you find any question mark? Yes, verse 6 question mark, exclamation mark. Verse 2 has 2 question marks. So ये इसलिए दिया, पढ़ने का समय सवाल की समान उसको पढ़ना है। For example, there are many who say, who will show us some good? Question mark. Theological theme, divine righteousness or justice. Divine righteousness or justice. Even खुद का बेटा होगा, परमेश्वर की दास की विरोध खड़ा हुआ तो there is a divine righteousness and justice. क्या होगा? वो बेटा को भी नष्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, परमेश्वर के कलीसिया को तोड़ने के लिए कलीसिया का खुद का विश्वासी खड़ा हुआ तो परमेश्वर क्या करेगा? ये मेरा बेटा है करके उसको कंफर्ट नहीं करेगा, दंड जरूर। सो देयर इज अ डिवाइन राइटियसनेस एंड जस्टिस। इवन द पीपल ऑफ गॉड इज स्टैंडिंग अगेंस्ट द मिशन ऑफ गॉड, गॉड विल डू हिज पार्ट। पॉइंट नंबर 2, ट्रस्ट इन गॉड, रिपेंडेंस एंड वर्शिप। और शत्रु लोगों से दाऊद ने क्या बोला? मन फिराओ और इस परमेश्वर को आराधना करो, वही एक ही रास्ता है। जॉय एंड कंटेनमेंट, इस दुख का बीच में भी एक आनंद का समय जो है उससे काफी है करके एक सोच। कंटेनमेंट मतलब है बी फेथफुल इन लिटिल थिंग्स, व्हाट एवर यू हैव, काफी है करके एक सोच आता है। आज सुबह का ही खाना है, काफी है, बिल्कुल ठीक है करके एक सोच। ये वर्स बाय वर्स कमेंट्री है, ये प्रचार है, मैं नहीं लेता हूं क्योंकि अभी ऑलरेडी ऊपर बताया गया। Psalm 4 in canon of scripture, relationship to other psalm, मैंने ऑलरेडी बोला 3 और 4 में कनेक्शन है। देन यहूदी लोग इसको, जूइश लोग उनका ट्रेडिशन में यूज करता है, कहां? इवनिंग प्रेयर्स में, ऑलरेडी बोला गया। देन इन्फ्लुएंस ऑफ लेटर थियोलॉजी, इसको बाद में का रिपेंडेंस के बारे में प्रचार करने के समय जैसे चर्च फादर्स ऐसा वाला लोग यीशु मसीह का प्रचार का निशाना है करके बोला था। Why? Because what was the content, what was the message of Jesus Christ? Repent and come back, believe. So same theme इसमें है करके कुछ पादरी लोग, चर्च फादर लोग बताया, जैसा अगस्टिन ये लोग बताया। टेक्सुअल इश्यूज, हिब्रू में इसके बारे में कुछ डिबेट हुआ था। किसी ने पढ़ी है पहला सेंटेंस?
फॉर एग्जाम्पल बी एंग्री एंड डू नॉट सिन, उसको ऐसा भी बताता है ट्रम्बल एंड डू नॉट सिन। ट्रम्बल मतलब हिंदी में क्या है, ढूंढो, वो होगा ट्रम्बट नहीं, ट्रम्बल, ये सब बजाने वाला कांपना, कांपना मतलब क्या है? हाँ, सो कुछ लोग बताया इसका ट्रांसलेशन में आया है बी एंग्री एंड डू नॉट सिन, उसको करेक्ट ट्रम्बल एंड डू नॉट सिन, कांपना, वो उसको कैसे एक्सप्रेशन कैसे देता, मतलब कुछ सुना हमने। फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ, दाऊद ने सुना बेटा मर गया, तुरंत हमें तो क्या करता है, ये कहाँ का परमेश्वर है, मतलब क्या है, फीलिंग समझ नहीं आ रहा, ऐसा वाला ऐसा अनुभव, वही है ना कांपना। मतलब खुद का बेटा मर गया, हम क्या करता है, एक कैसा वाला परमेश्वर है करके हम सोच रहे, इसलिए वहां बताया ऐसा वाला सिचुएशन भी डू नॉट सिन, परमेश्वर का विरोध बात है नहीं करना। समझ आया? जो आप लोग प्रचार करने के समय बता सकता है, इसका करेक्ट मतलब है कांपना। आंग्र की वहां लिखे रखना ट्रम्बल, कहाँ है वो वचन कहाँ, बी एंग्री वर्स 4। इसमें भी हिंदी में भी कैसा खाते लो। इसका इंग्लिश में हिंदी है, अच्छा एंग्री है। सर लिटरेरी क्रिटिसिज्म, it also has one theological interpretation, which means even to the enemies David is saying repent, come back and worship God. मतलब even he is giving a message to the enemy, even if you are wrong today, if you repent and if you come back, Lord is gracious and he will forgive. मतलब एनिमी से भी बता रहा है, मन फिराकर वापस आया तो मेरा परमेश्वर तुम लोगों को माफी देने के लिए तैयार है, वापस आओ। इसकी पहले इसको कौन मारा? एप्लीकेशन एंड रिलेवेंस, इट इज यूज्ड फॉर पर्सनल डिवोशन, कम्युनिटी वर्शिप, एथिकल इम्प्लीकेशन। एथिकल इम्प्लीकेशन मतलब इवन द फेलो बीइंग ऑफ, मतलब दाऊद का बेटा ही दाऊद का विरोध खड़ा हुआ, बेटा है करके उसको छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है, उसको भी दंड देगा, क्योंकि दाऊद को कौन राजा के रूप में चुना था? सो ही वॉज डूइंग द मिशन ऑफ गॉड। समझ आया? उदाहरण, शायद ये दादाजी सुना तो मुश्किल होगा, दादाजी का बड़ा बेटी लोग इस मिशन को बिगाड़ने के लिए सोच लिया, उसको उस दिन से लेकर इधर उसका चेहरा भी दिखाई नहीं दिया। उदाहरण में होता है, प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। दादाजी को 3 लड़की लोग हैं। कंक्लूजन, ऊपर दिए हुए बातों को जोड़ते हुए, इट विल मेक ए प्रोफाउंड थियोलॉजिकल इंसाइट्स and it is used and it has connection with both Judaism and Christianity. Do you have any doubt from Psalm number 4? Any doubt?